So in previous week, we have covered with starting part of that, what is problem solving and basics of Python. So out of that, we have covered with basics of problem solving. In that basics of problem solving, we have covered the topics, for example, what is problem, what are the types of problem, what are different strategies of problem solving, what how to solve problem in everyday life by using different 6 steps. Then top down design approach, then problem design tools, those are algorithm is there, flowchart is there, then pseudocode is there. Okay, so all of you done with the homework that I have given in given on Friday? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All of you draw the Yes, flowchart sir. for that. Find out the largest of the 3 numbers. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So any Yes, sir. doubt Yes, sir. regarding that? Any doubt regarding that? No, sir. No, sir. No, All sir. of you clear with the different flowchart symbols? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. Yes, sir. Okay. So we'll now go ahead with the actual topics that we have to study in this curriculum, that is Python programming. So basically, I will share PPTs. Python. So as we know, Python is a general purpose interpreted interactive object oriented high level programming language. Okay. So likewise, as I have told already that there are 2 types of basically programming language: procedure oriented programming language and object oriented programming language. Okay. So out of that, Python or some of the languages are distributed under these 2 categories. For example, C is nothing but C, or before C is those are language. ABC is there, COBOL is there. All these are procedure-oriented programming language. Okay, but after that, object-oriented concept is come in the existence, and that object-oriented programming language is basically, if you consider C++ is there, Java is there. So all these are object-oriented programming language, but Python uses both approaches, that is procedure-oriented also and object-oriented also. Okay, so it was first introduced in 1991 by Guido van Rossum, a Dutch computer programmer. Okay, so it is an actually Python is an exciting and powerful language with the right combination of performance and features that makes programming fun and easy. Okay, as I already told you, it is a high-level interpreted, interactive, object-oriented, reliable language. Okay, so if you considering history of Python, it's created by, as I already told, Guido van Rossum in 1980s. Actually, वो create कब हुआ है 1980s में हुआ है, but he published her first version of Python code is, that code version is 0.9.0 in February 1991 at CWA, Center of Wiskunde and Informatics. Okay, in the Netherlands. Okay, Python is derived from a ABC programming language, one of the procedure-oriented programming language, which is a general purpose programming language. Okay, and had developed under again that same CWI. Again, why the name Python is given? Since that Rossum is a big fan of that Monty Python's Flying Circus, that's why he have given the name for that language is Python programming language. Then Python is now maintained by a core development team at the institute, although Rossum will holds a vital role in directing its progress. Okay, so this is a history of Python programming. So all of you clear with the history of Python programming? Clear? Yes or no? Yes, sir. It is developed by Guido van Rossum in 1980s. First version of that Python code is 0.9.0 in February 1991.
Then the name itself is given because he is a big fan of that Monty Python's Flying Circus. Okay, it is derived from ABC programming language, one of the language, which is procedure-oriented programming language. Now, different versions of Python. As I have already told, वन के पहले वाला वर्जन जो पहले उसने मार्केट में लॉन्च किया था रॉसम ने, वो था 0.9.0. उसके बाद जो मेजर वर्जन जो एक्चुअल मार्केट में यूज होने लगे, पाइथन 1.0 जनवरी 1994, पाइथन 1.5 दिसंबर 1997, लाइकवाइज पाइथन 2.0 अक्टूबर 16 2000, ओके, likewise 2.7 July 3 2010. Nowadays we are using a 3 onwards versions. So current version of Python available in market is 3.9, which is launched in October, I think August 2020. That is before 6 or 7 months ago. Okay, so currently we are using, but you can use any version of 3. That is, you can use 3.5 also, 3.6 also, 7 also, 8 also, or 9 also. 9. You can use any one version out of this. Okay, so these are the different versions are available in market. Okay, then what are in exam they ask you one basic question, that is, what are different features of Python programming? Okay, what are difference of Python programming language? So 4 marks से 5 marks के लिए question पूछा जाएगा. You have to mention at least 6 features in your answer. First feature is what? It is simple. Python is a simple and small language. Reading a program written in Python feels almost like reading English. मतलब जैसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज हम रीड करते हैं, वैसे ये प्रोग्रामिंग है. पाइथन के जो सिंटैक्स है, दोज आर वेरी सिंपल एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इफ यू कंसीडर C, C++ or Java, as comparison of that specific C or C++ or Java or any other language, it is very simple. So that's why one of the first feature is Python is a simple and small language. Reading a program written. So आपको क्या लिखना है? First you have to write it is simple. Simple के अंदर क्यों simple है? Because reading a program written in Python feels almost like a reading language, English language. Okay, so that is a advantage of this Python programming language. Second one is easy to learn. A Python program is clearly defined and easily readable. मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि it is in the form of English language, तो वो it is very clearly defined and easily readable. The structure of the program is also very simple. जैसे कि if you consider the C programming, इसमें anybody know the structure of C program? Anybody? Those who are done with the C program? Anybody? Hello. Void main and open close. Okay, void main, or we have to mention some header. Yes, we have to first mention header files. That first header file is hash include stdio.h. That is standard input. Yes. Conio.h is there. If you are using string functions, string.h, math.h is there. So different libraries are available. That you have to mention at the starting of your writing a C code. आपने वो libraries include नहीं तो printf function आपके execute नहीं होगा. Okay, okay, these are the scanf function execute नहीं होगा आपका. Okay, या आप directly printf और scanf लिख सकते हैं program में, लिख सकते हैं without these header files. Anybody? No. तो आपको क्या आएगा? वहां पे error आएगा. printf और scanf function के लिए error आएगा because आपने stdio.h फाइल वहां पे include नहीं किया. कहाँ पे? At the starting of your code. But that is not the thing with your Python programming. आपको कोई भी header file वहां पे include करने की जरूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ पे hash include iostream.h वहां पे यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं iostream.h? Anybody? C++. Yes, C++. So जैसे stdio.h होता है वहां, वैसे ही यहाँ पे C++ में iostream.h. तो वो आपको कंपल्सरी इंक्लूड करना ही, मतलब विदाउट दैट हेडर फाइल योर कोड कैनॉट बी कंप्लीट और योर कोड कैनॉट बी एग्जीक्यूट. उसके बाद होता है आपका ये क्या, आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन, वाइड मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर राइटिंग सी कोड. सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट. तो वहां पे अभी सो टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू मेक एज कंपेयर टू पाइथन दैट इज वेरी डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, बट टू एज कंपेयर टू पाइथन दैट इज डिफिकल्ट. सी प्रोग्रामिंग सिंटैक्स और C++. वैसे कि और सिंपल है, वहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने पड़ते हैं हमें फॉर डेटा टाइप. जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप हमने यूज किया. Anybody know the format specifier for integer data type in C? C programming format. Percentage. Yes, %d you are using.
परसेंटेज एफ इज यू आर यूजिंग फॉर फ्लोट, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी यूज करते हैं, स्ट्रिंग के लिए परसेंट एस यूज करते हैं. These format specifier are not required while you are implementing Python programming. So that's why we are called it as easy to learn. It is simple. Second one is it is versatile. Third one is versatile. Versatile means what? Python supports the development of wide range of application. मतलब simple to large applications. Okay? Excuse me, sir. tell Your me. screen is not visible. Screen is not visible. Yes, sir. Okay. Now It is visible, sir. okay. Visual, sir. Okay. Some of the features are not included in actually in slides. Hello. Okay. All of you getting? Yes, Hello. yes, sir. Simple, then easy to learn, versatile. Those features are actually not included in our slides. That's why those are not. You are telling that your slide. Sir, is we not are not able to see the slides only. Yes, sir. till now you are sure. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. I will share again. सर दिख रहे थे सब. दिख रहे थे? हाँ दिख रहे थे सर. हाँ Yes, सर. sir. क्यों शेयर किया था मैंने? दिख रहा था सर, दिख रहा था. अभी हो रहा है शेयर किया अभी मैंने. हाँ अभी हो रहा है. अभी हो रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Now it's visible, sir. Okay. Now visible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is Python basic. That is history. What is the history of Python? तो पहले जैसे बताया मैंने 1980s में उसने राइट किया, उसको क्रिएट किया. उसके बाद उसका फर्स्ट वर्जन जो मार्केट में उसने पब्लिश किया दैट इज 0.9.0 इन 1991. उसके बाद इट इज derived from ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाम क्यों पाइथन दिया? बिकॉज ही इज अ बिग फैन ऑफ दैट Monty Python's Flying Circus. That's why he given a name Python. Again, Python is now maintained by a core development team in the institute at that institute. जहाँ CWI में नेदरलैंड में वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो सारा उसका वर्क चलता है, जो मेंटेनेंस होता है पाइथन प्रोग्रामिंग का, सारी चीजें वहाँ पे होती है. Also, although Rossum still hold the vital role while directing its process. मतलब वो लीड पाइथन Rossum ही करता है उसको. उसके बाद उसके कुछ फीचर्स है. इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो बाकी फीचर्स क्या है, वो सारी चीजें हमें चैप्टर नंबर 5 में आपको डिटेल में पता चलेगा. What is object oriented programming? What are different features of object oriented programming language? Those are polymorphism, operating overloading, multi-hyper inheritance. These are indentation is one of the feature in Python. मतलब पहले जितने भी प्रोग्रामिंग है वहां पे इंडेंटेशन मीन स्पेसिंग का इतना कुछ मैटर नहीं करता था, बट यहाँ पे इट्स मैटर. स्पेस इज मैटर. मतलब आपने जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है स्पेस की, इंडेंटेशन नहीं जरूरत है, वहां पे भी आपने स्पेस दिया, इट गिव्स यू एरर. वो कैसे होता है वो बाद में आपको जब एग्जांपल बताऊंगा आपको व्हाइल राइटिंग द कोड. एट दैट टाइम यू क्लियर द व्हाट इज द इंडेंटेशन. और इंडेंटेशन के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द इंडेंटेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, फॉर 4 मार्क्स और 3 मार्क्स. वो बाद में एक्चुअल टॉपिक है, तब हम पता चलेगा. इट इज फ्री, एक्चुअली ओपन सोर्स है. आपको डायरेक्टली विदाउट यू हैव टू डोंट परचेस एनी लाइसेंस कॉपी ऑफ दैट पाइथन सॉफ्टवेयर IDE जो भी आपको यूज करना है. इट इज फ्रीली अवेलेबल. सो दैट इज वन ऑफ द फीचर. इट्स open source or free. That is, downloading and installing Python is free, and easy source code is easily available or accessible. Now it is a powerful dynamic typing, built-in types and tools, library utilities. Third party utilities में कुछ ऐसे utilities है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करने उसमें using Python. Some advanced things you have to do by using Python. So NumPy करके है, उसके बाद numeric करके है, SciPy करके एक है. तो सारे यूटिलिटीज आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर. ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट इज देयर. इट्स पोर्टेबल. पाइथन रन्स वर्चुअल मेमोरी एवरी मेजर प्लेटफॉर्म यूज टुडे. As long as they have compatible Python interpreter installed, Python program will run in exactly the same manner as if it's to our platform. Okay. Then some other features we can call it is high level language. आप लिख सकते हैं वहाँ पे एग्जाम में. Programming Python work in interactive mode. It which allows interactive testing and debugging of piece of code. मतलब higher level programming language because when we writing the program in Python, the programmers don't have to worry about the low level details like managing memory use in the program. जैसे कि low level language आप देखेंगे, machine level language is there, assembly language is there, which is used with microcontrollers or microprocessors. Okay, तो उस language में कैसे होता है, in that machine level or assembly language,
जब आप सेकंड ईयर में if you are studying microprocessors, that is microprocessor interfacing language, okay, so in that the MIL lab is there. So in that language you have to study assembly language, and that assembly language you have to study how to write assembly programs with respect to microcontrollers. अभी उस केस में हमें मेमोरी मैनेज करना पड़ता है. That's why we that assembly language is come under that specific लो लेवल लैंग्वेज. तो यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, वहां पे आपको रजिस्टर वगैरह मैनेज करने पड़ते हैं. जब आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज हाई लेवल लैंग्वेज. वी डोंट वरी अबाउट द लो लेवल डिटेल्स लाइक मैनेजिंग द मेमोरी यूज्ड बाय द प्रोग्राम एटसेट्रा. Okay, then next one is embeddable. That is programmers can embed Python with other languages also. C, C++ को आप embed कर सकते हैं, मतलब add कर सकते हैं scripting. मतलब आपको जैसे कि आप when we are doing a website development, at that time we are using HTML, CSS, PHP, and also Python. That is combination of all these things. So that is nothing but embedded. So that is one of the feature of Python programming. Then it is secure. The Python language environment is secure from tampering, or module can be distributed to prevent the altering of the source code. Apart from this, additional security checks. Stay 1 minute. Wait for 1 minute. One call is there. Hello, am I audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. So these are the different features that you have to write while you have to write that specific answer. So all of you clear with the features? Theoretical question will be asked on this. What are different features? You have to write it is simple, easy to learn, versatile, free and open source, high level language, portable language, embedded language, secure language, object oriented language. These are the different features you have to write while writing the answer. In detail, I will provide you notes regarding this theoretical part also. Okay, clear? Yes or no? Hello? Yes, sir. Yes, Okay. sir. I will provide you all the things. तो बेसिक्स ऑफ पाइथन के ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन एक ही पूछा जाएगा, व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ पाइथन, और बाकी सारी चीजें और अभी तक का जितना पार्ट हमने देखा था, जो स्टार्टिंग में देखा था, व्हाट इज प्रॉब्लम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट आर डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज, उसके बाद टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच, एल्गोरिथम फ्लोचार्ट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन, उसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे. मतलब थियोरेटिकली पार्ट अभी तक हमारा जो भी था दैट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ, अप टिल फीचर्स ऑफ योर पाइथन प्रोग्राम. अभी इसके ऑनवर्ड जो भी टॉपिक्स है, those are either they can ask you programs or program regarding concept, that is indentation with example. You have to write the one program for indentation and what is the indentation, 1 or 2 line. Likewise questions will be asked, or simple questions like what are literal constants, जो अभी पढ़ने वाले आगे. So all of you clear with the versions of Python? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Or no? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir. So you can use any version from 3.0 onwards. Latest version is 3.9. Okay. Now अभी कुछ changes है जो Python 2 और 2.0 और 3.0 में है. जैसे कि Python 2.0 वर्जन जो वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो लिखते थे हम, तो उस केस में हम क्या थे, वहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं देते थे. जैसे कि नॉर्मली प्रिंटफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग, प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन डबल कोट हेलो वर्ल्ड डबल कोट कंप्लीट पैरेंथेसिस क्लोज, तो वैसे 2.0 वर्जन में हम यूज नहीं करते थे. बट दैट इज नॉट द केस विथ योर 3.0 वर्जन. आपको 3.0 वर्जन ऑनवर्ड्स क्या करना है, पैरेंथेसिस देना ही है कंपल्सरी. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंज. उसके बाद कुछ अदर चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे देखो इनपुट आउटपुट एरर का जो एरर जो आया है, एरर रेज हुआ है वहां पे देखो, Python 3 वी शुड एनक्लोज द एक्सेप्शन आर्गुमेंट इन पैरेंथेसिस. मतलब पहले ओल्ड वन वर्जन में कैसे करते थे, रेज आयो एरर कॉमा फाइल एरर, तो दैट यू हैव टू राइट फाइल एरर इनसाइड द पैरेंथेसिस इन 3.0 वर्जन. तो ऐसे डिफरेंट कुछ चीजें है. जैसे कि और एक है डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स रिटर्न अ फ्लोट इंस्टेड ऑफ इंटीजर. मतलब जब नॉर्मली आपने मुझे बताओ, सी का एक एग्जांपल बताता हूं आपको. मैंने सी के दो वेरिएबल्स इंटीजर मतलब नॉर्मल नंबर्स, दोज डोंट हैव एनी डेसिमल नंबर, जैसे कि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 3.
So what is the division of these three numbers will be occur? Division One. क्या आएगा इसका? 1. 1. But that is not the case with your Python 3.0 version. तो यहाँ पे क्या आएगा आपको? 1.66. Yes, 67. That wise और आपको 1 चाहिए तो आपके लिए आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ेगा. वो बाद में हम जब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है वहां पे हमें पता चलेगा हाउ टू यूज दैट ऑपरेटर्स. तो वो डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे. व्हाट आर डिफरेंट ऑपरेशंस और ऑपरेटर्स दैट वी हैव टू यूज व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट पाइथन प्रोग्राम्स. ओके, सो उसके पहले डायरेक्ट स्टार्ट विथ अभी एक मैं डायरेक्टली ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर करके दिखाता हूं आपको. Those who don't have any laptops or PCs, they can directly browse JDoodle in your Google, and inside screen is visible to all. Yes or no? Yes, sir. Yes. तो JDoodle दिख रहा है सबको ऑनलाइन? हाँ. तो जिनके पास मोबाइल फोन के थ्रू जो करने वाले प्रोग्रामिंग, तो यू कैन डायरेक्टली ब्राउज इट इन योर मोबाइल फोन एंड डायरेक्टली क्लिक ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग ऑनलाइन. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक एडिटर मिलेगा, ऑनलाइन एडिटर. उसके नीचे आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट कुछ आपको इनपुट्स देने हैं, तो उसके लिए थ्रू आप दे सकते हैं. और नीचे आपको रिजल्ट में आपको जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, नीचे दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वहां पे Yes, आपका sir. आउटपुट, इट विल गिव यू आउटपुट. और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंट वर्जन, अभी यहाँ पे देखो 3.5 ऑनवर्ड्स वर्जन यहाँ पे अवेलेबल, लेटेस्ट वर्जन 3.5, 3.6, 3.6.5 और 3.74. तो यहाँ पे मैंने वो सिलेक्ट किया है. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी एक सैंपल कोड ऑलरेडी होता है जब आप ऑनलाइन देखते हो. तो आपको करना है आपका खुद का कोड. यू कैन सिंपली डिलीट इट. ओके, नाउ अभी कैसे होता है? while you are studying any programming language, anybody tell me which simple program that we have to first do at the start of any programming language? Hello world program. Hello world. Yes, you have to display simple message on your output screen. अभी output screen के ऊपर कोई मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, any message or any data on your output screen. For that purpose you have to use printf statement. अभी printf statement वहां पे यूज होता है, कहाँ पे? C प्रोग्राम. तो यहाँ पे यूज करते हैं हम print. क्या यूज करते हैं? सबको दिख रही है? हाँ, sir. Yes, sir. Screen is visible? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हमें क्या करना है? और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो 2.0 वर्जन है वहां पे हमें करने की जरूरत, डायरेक्टली ऐसे लिखा, हेलो लिखा तो भी चलता है. बट फॉर फ्रॉम 3.0 onwards version you have to write what? Parenthesis. Bracket close. So this is your simple statement, a simple message that you have to print. Hello world लिखता हूं मैं. Tell me, while you are writing C program, you are writing printf statement. Okay, so only printf hello world लिखने से प्रोग्राम होता है क्या? Whether your code is run? Semicolon. Yes, semicolon you have to give. Again, other things also you have to include. Which things? Double quotes. Yes, यहाँ पे डबल कोट नहीं दिया तो चलता है. यहाँ पे डबल कोट इंस्टेड ऑफ डबल कोट, सिंगल कोट, यू कैन यूज डबल कोट आल्सो. देखो यहाँ पे ये सिंगल कोट यूज के बाद में हम देखेंगे डबल कोट कैसे वर्क होता है. ओके, तो यहाँ पे कंपल्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए सिंपल और वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज. ओके, रीडेबल लैंग्वेज है, सिंपल फॉर टू यूज. अभी यहाँ पे मैंने और कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे इंक्लूड की है. वेदर आई हैव इंक्लूडेड एनी लाइब्रेरी? यस और नो? No. I have simply written print. Only written print statement. In that bracket, I have written hello world. Okay. Now what you have to do? You have to do only click on execute. All of you getting the output? Yes, sir. Okay. So यही आपको कहाँ पे करना है? Same you have to do in C और C++. आपको वहां पे दो हेडर फाइल आपको कंपल्सरी इंक्लूड करने पड़ेंगे. #include stdio.h, #include conio.h. और C++ में कर रहे होगे तो आपको iostream.h और cout hello world. यहाँ पे printf hello world. तो यहाँ पे printf नहीं याद रखना है आपको. यहाँ पे print यूज करना है. क्या स्टेटमेंट यूज करना है to display any message? Tell me. Print. So यहाँ पे इसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन. Which function this is? Which function?
हाँ, एग्जाम में आपको पूछा, आपको क्या करेंगे एग्जाम में दे कैन आस्क यू व्हाट आर डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन अवेलेबल इन कहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये आउट इनपुट फंक्शन के लिए इनपुट होता है, वो बाद में देखेंगे हाउ टू यूज इनपुट फंक्शन। पर अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया। अभी यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया मैंने पहले कि आई हैव रिटर्न, आई हैव मेंशन हियर सिंगल कोट, नाउ आई विल रिप्लेस दैट सिंगल कोट बाय यूजिंग डबल कोट। ओके, क्लियर? एनी डाउट? ऑल ऑफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? No, sir. आपको समझ में आया? वहां पे आपने सिंगल कोट सी में लिखा या C++ में या जावा में लिखा, वेदर दैट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड? No, sir. वहां पे सिंगल कोट में क्या लिखते हैं हम? कैरेक्टर डिफाइन करते हैं सिंगल कोट में। कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन आल्सो मेंशन ट्रिपल सिंगल कोट्स। All of you write down these things roughly. Clear है सबको अभी? How to write down the printf Yes, sir. statement to print anything? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो प्रिंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर कितने कोट्स यूज कर सकते हैं? 3 टाइप के कोट्स। एक तो सिंगल कोट 1 टाइम, या सिंगल कोट 3 टाइम्स, और डबल कोट। गेटिंग? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is your simple Python program to display any message on output screen. अभी यहाँ पे मैं कुछ आपको कुछ और लिखना है, you can try it, कुछ भी लिखना है, so it can be display directly. Okay, you'll get out your output. अभी आपने, मैंने तो ये ऑनलाइन किया है, बट जब आप लैब में आएंगे in your our computer lab while you are performing your lab session practicals, आपको open source operating system यहाँ पे Ubuntu we are having. And Ubuntu we have Python 3 setup, 3.5 setup is there. You have to, what you have to do? You have to first open text editor in Python, in Ubuntu. You have to write this code. अभी यहाँ पे मैंने जो कोड लिखा है print hello world, उसको आपको क्या करना पड़ेगा कोड लिखने के बाद? अभी यहाँ तो डायरेक्टली एडिटर और कंपाइलर आपके सामने डायरेक्टली ऑनलाइन है, इसकी वजह से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। बट इस कोड को आपको क्या करना है? सेव करके रखना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? वो जो आपने टेक्स्ट, हाँ, .py, यस, आपको सबको पता ही होगा। When you are doing any doc file, तो doc file का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc और .docs file, okay? और .ppt is there, then .c for C programming .c is there, Java programming .java is there. Similarly, for C++ .cpp is there. So for Python also, one extension that you have to use, that extension name is .py. What is the name? .py. जब आपने प्रोग्राम को कुछ भी नाम दो आप, program1.py, program1.py, उसको सेव करो कहाँ पे? तो और डायरेक्टली आप टर्मिनल ओपन करना है। अभी ये यहाँ पे Ubuntu जब आप देखेंगे तब वहां पे आपको टर्मिनल में कमांड यूज करना है, Python 3। क्या कमांड यूज करना है? Python 3, क्योंकि हम 3 वर्जन यूज कर रहे हैं। तो Python 3 के बाद स्पेस देना है आपको, और उसके आगे लिखना है प्रोग्राम का नाम। जैसे कि मैंने प्रोग्राम का नाम दिया program1.py। तो जैसे आपने एंटर प्रेस किया, उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रोग्राम टाइप किया, उसके बाद एग्जीक्यूट बटन के ऊपर क्लिक किया, यू विल गेट योर आउटपुट। ओके, सो ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? Yes, sir. आपको ऐसे ही जिनके पास लैपटॉप्स और पीसी नहीं है, दे कैन यूज दिस। और बाकी लोगों को जिनके पास पीसी और ये पाइचार्म यूज कर सकते हैं, एनाकोंडा यूज कर सकते हैं, एनी प्लेटफॉर्म यू कैन यूज फॉर डेवलपिंग पाइथन प्रोग्राम्स। प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं कि यही यूज करना है। बट इन योर कॉलेज यू हैव टू ओनली यूज Ubuntu open source operating system, and in that you have to develop your programs. Okay, any doubt regarding this now? No. No, sir. Okay. No, sir. अभी ये तो हमने बेसिक थिंग देखे। अभी उसके बाद प्रोग्रामिंग में कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी जो कोड टाइप किया होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कोड और सोर्स कोड। क्या बोलते हैं उसको? हेलो, जो भी आपने अभी टाइप किया, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। यस, सो दैट इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम। उसके बाद वो सोर्स कोड के अंदर जो भी लिखा है हमने, दैट इज नथिंग बट
जो इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसके लिए कुछ तो लिखा है हमने, उसके लिए क्या यूज किया, सिंटैक्सेस यूज किए। जैसे कि सिंटैक्स क्या लिखा था प्रिंट के लिए, प्रिंट पैरेंथेसिस ओपन सिंगल कोट और डबल कोट, इन दैट यू हैव टू राइट योर मैसेज, डबल कोट कंप्लीट पैरेंथेसिस क्लोज। तो वो क्या हो गया, सिंटैक्स हो गया। वहां पे मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया रहता, तो इट गिव्स यू व्हाट इट विल गिव, एरर। तो वहां पे वो अपने कुछ सिंटैक्स में गलती की है। अगेन वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले किसी ने तो बताया वहां पे सेमीकोलन देना पड़ता है, तो वो कहां पे देना पड़ता है सेमीकोलन, सी और C++ और जावा प्रोग्राम में यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, यू हैव टू क्लोज योर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट और ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन बाय सेमीकोलन। मतलब कुछ भी आपने लिखा उसको आपको क्या करना है, सेमीकोलन से क्लोज करना है। बट दैट इज नॉट द थिंग विथ योर पाइथन प्रोग्राम, देयर इज नो नीड टू राइट डाउन व्हाट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। गेटिंग यस और नो? Yes, sir. कंपल्शन नहीं है, Yes, sir. लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट डॉट सेमीकोलन। ओके, नेक्स्ट वन इज आउटपुट। आउटपुट किसको बोलते हैं, जो अभी आपने ब्लैक स्क्रीन में नीचे देखा ना, दैट इज योर आउटपुट। और कंसोल किसको बोलते हैं, जो ब्लैक स्क्रीन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंसोल। आउटपुट मीन्स व्हाट, द मैसेज दैट यू हैव टू प्रिंट ऑन कंसोल, एंड कंसोल इज व्हाट, द आउटपुट विल बी डिस्प्ले ऑन वन ऑफ द थिंग, दैट थिंग इज नथिंग बट कंसोल। गेटिंग क्लियर? Yes, sir. चारों चीज एक समझ में आए सबको, बेसिक रिगार्डिंग प्रोग्राम बेसिक। वन होता है सोर्स कोड, सेकंड होता है सोर्स कोड के अंदर सिंटैक्सेस, थर्ड होता है सोर्स कोड का आउटपुट, एंड फोर्थ होता है आउटपुट जहां पे डिस्प्ले होगा, दैट वन इज कंसोल। अभी यहाँ पे पाइथन शेल यूज करके हमने यूज किया है प्रोग्रामिंग, एक स्नैपशॉट यहाँ पे डाला है मैंने। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इज देयर, उसके बाद example.py करके यहाँ पे देखो एडिटर है, ये सिंपल एडिटर। तो वहां पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अभी यहाँ पे 2.0 वर्जन है, इसकी वजह से वो हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट नहीं डाले कुछ, और प्रिंट 2.2, ठीक है। उसके बाद उसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है आपको, कंसोल। सो दैट इज द थिंग वेयर योर आउटपुट विल बी डिस्प्ले। उसके बाद पाइथन कोड एग्जीक्यूशन। अभी कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है सबको बताता हूं मैं। जनरली वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू टाइप अ कोड, एनी लैंग्वेज, C is there, C++ is there. Now tell me, why we have to use compiler while executing that code? Why we have to use compiler? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। Compiler Yes. converts it Convert to a into machine binary. level Yes, language. yes. High level language. One is a thing you have to machine level remember, computer doesn't understand the normal language that the code you have written. That language is not understood by what? Computer. Again आप देखो कि आपके कीबोर्ड पे कुछ कीज होते हैं, पता है ना, ABCD, you are typing those keys ना, तो वो कीज के पीछे कुछ तो होता है, किसी को पता है क्या क्या है, व्हाट इज देयर बिहाइंड दैट कीज? ASCII values. यस, ASCII वैल्यू इज देयर। स्मॉल ए के लिए जैसे होता है 65 इज द स्मॉल ए ASCII वैल्यू, और कैपिटल ए की होता है 97, और 0 to 9 इज देयर फॉर 1 2 3 4 लाइकवाइज। ओके, तो हर एक क्यों होता है ASCII वैल्यू, दैट इज ASCII वैल्यू को अगेन वो क्या कस में कन्वर्ट करता है, बाइनरी में। तो आपका जो कोड होता है वो आपको कंप्यूटर के लैंग्वेज दैट इज बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर्ड कंपाइलर। सो फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज देयर विल बी डिफरेंट कंपाइलर्स अवेलेबल इन मार्केट, दैट माय कंपाइलर यू हैव टू यूज। जैसे पाइथन 3 स्पेस program1.py, तो पाइथन 3 एक कंपाइलर है दैट यू हैव यूज। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, यू विल गेट द आउटपुट हेलो वर्ल्ड लाइकवाइज। पर वो उसको क्या बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं, जो कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं बाइट कोड, और उसका एक्सटेंशन होता है .pyc, दैट इज कंपाइल पाइथन कोड। उसके बाद जो एक मशीन यूज होता है उसको बोलते हैं पाइथन वर्चुअल मशीन टू रन दैट स्पेसिफिक कोड, पाइथन वर्चुअल मशीन PVM। तो एग्जाम में पूछा सकता है द कोड विल बी रन बाय डैश, तो दैट इज PVM, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। Again, source code you type is translated to byte code, that you have to remember. That can be also asked in your MCQ type of exam होगी, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा source code in Python that will be converted to dash dash dash, so that is byte code. Binary means which form of language? Anybody? 0 and 1. हाँ, the language in the form of 0 and 1. अभी देखो जैसे कि आपका बाइनरी का कन्वर्जन होता है, वो बाइनरी कन्वर्जन बाद में आप जब लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे तब आपको बताऊंगा मैं कि बाइनरी कन्वर्जन के थ्रू कैसे वो लॉजिकल ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है, तो वो बाद में देखेंगे हम कैसे कन्वर्ट। तो जैसे कि
1 का बाइनरी किसी को पता है कि एनीबॉडी 1 का बाइनरी? 0 0 0 0 0 0 0 हाँ, 0 if you are considering 4 bits, 0001. yes, 0001 4 bits. If you are considering 8 bits representation, 7 times 0 1. If you are considering 4 bit representation, 3 times 0 1. Likewise, 0010 is for 2, 0011 is for 3, 0100 for is for what? 4. Likewise, वो बाद में देखेंगे हम कैसे करना है वगैरह. ओके, पर एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाता what is binary conversion, that but you have to remember for programming point of view. So that part you have to remember while executing program. We require compiler compulsory, because computer machine cannot understand normal language, that is any programming language. Programming language is the one way to write a program, but that programming language is not understood by computer. To convert that programming language into binary language, that is byte code, we require compiler compulsory. Without compiler we cannot execute our code. All of you clear with this? Yes or Yes, no? sir. Okay. Yes. अभी नेक्स्ट थिंग क्या होती है? डेटा टाइप्स. अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं अभी सबको पता ही होगा, जो स्टडी सी प्रोग्रामिंग और C++ वगैरह. So as we know, every value in Python has a data type. As we know, every value in Python has a data type, or any other language also, C or C++ also. Since everything is an object in Python programming, data types are actually class and variables are instance of that class. मतलब actually जो भी यहाँ पे हम यूज करने वाले keywords, those are itself what classes or variables or instance of that classes. Okay, जो भी inbuilt यूज करने वाले, जो आपको बाद में पता चलेगा. Again, one thing you have to remember. Tell me one thing. While you are declaring, अभी डेटा टाइप तो पता है कि मुझे इंटीजर यूज करना है, उसके बाद क्या यूज करना है, फॉर एग्जांपल फ्लोट यूज करना है, स्ट्रिंग यूज करना है. बट वो डेटा टाइप यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू यूज? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट वी रिक्वायर्ड? इनपुट. इनपुट नहीं, इनपुट तो बात क्या हो गया. वो मुझे क्या करना है? एक इंटीजर डेटा टाइप लेना है. वो लेना है, पर वो कुछ तो करना पड़ेगा. वो लेने के लिए कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना मुझे उसको. वेरिएबल. Yes. Variables or identifiers. We called it as what? Variables and identifiers. We called it as what? Variables and. अभी आप लोग लिख के रखो वहां पे. मैं अभी आप एक 1 by 1 रूल बताता हूँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए. ऑल ऑफ यू गेटिंग? यस और नो? मैं वहां पे आपको अभी 1 by 1 आई विल कॉलिंग 1 by 1 रूल. You have to remember those rules. और एग्जाम में पूछा जाता है what is variable in Python and explain the different rules for defining the variable. अभी पहला रूल आपको बताता हूँ. First character of an identifier variable must be underscore or letter only. क्या होना चाहिए आपका? फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए वेरिएबल का? अपर केस और लोअर केस में लेटर हो सकता है, और अंडरस्कोर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं. अंडरस्कोर var1. क्या लिखा मैंने? अंडरस्कोर var1 इज इक्वल टू, मैंने उसकी वैल्यू ली यहाँ पे 3. व्हाट इज वैल्यू? अंडरस्कोर var1 इज इक्वल टू 3. तो आपको वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अभी सेकंड में अभी यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज किया, और एक क्या बताया मैंने, क्या यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में? व्हाट वी हैव टू यूज? अपर केस और लोअर केस. तो यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल var2 इज इक्वल टू 5.5. क्या लिखा? कैपिटल var2 इज इक्वल टू. ऐसे ही आप लिख सकते हैं. एक तो अंडरस्कोर यूज करो, नहीं तो कैपिटल V और मतलब कैपिटल लेटर्स और लोअर केस अपर केस दोनों में से एक कुछ तो यूज करो. तो फर्स्ट रूल समझ में है सबको? ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर विद द फर्स्ट रूल? यस सर. Yes. The first character of identifier must be underscore or letter, and that letter can be uppercase or lowercase. Okay. Now next, second rule, rest of the identifier name can be. मतलब first अभी आपका हो गया डिसाइड कि आप अंडरस्कोर यूज करो या लेटर यूज करो. अभी बाकी के आप बाकी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब डिजिट्स यूज कर सकते हैं या अदर थिंग्स यू कैन यूज. सेकंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर, थर्ड रूल, punctuation characters or special symbols cannot be used in identifier variable name. Means what? समझ में आया किसी को ये रूल? क्या करना है? मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स cannot be used. मतलब एस्टेरिस्क वगैरह यूज नहीं कर सकते. Yes. मतलब मैंने ऐसे लिखा where $. Whether this is valid variable name? No.
No. So all of you clear with the rule? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Fourth rule is identifier name are case sensitive. What is the third rule? Fourth rule, identifier name are case sensitive means what? देखो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है var1, उसके बाद मैंने लिखा कैपिटल var1. So tell me, these are different or same? Different. Different, sir. Two different है because character variable name are case sensitive. Getting? So all of you clear with the 4 rules? Anybody tell me the 4 rules that I have all told right now? To declare a variable name or identifier name. Anybody? First Can you rule. please repeat, sir? First rule is that the first character should be should be an underscore and an alphabet. Okay. Next one. Next is that there cannot be a special character in the Okay. name of the variable. Yes. That is मैं यहाँ पे लिख के रहता हूँ var $, और यहाँ पे और कमेंट में लिखता हूँ. कमेंट कैसे? कमेंट बाद में बताओ कैसे लिखें. इनवैलिड वेरिएबल नेम आप लिख सकते हो. यू कैन राइट डाउन दिस थिंग, इनवैलिड वेरिएबल नेम. ओके, समझ में आया? ये हैश क्यों लिखा मैंने वहां पे? हैश क्यों दिया वहां पे? Comment start. आपको बोला था डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाइल यू आर राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यूजर. अभी यहाँ पे मैं क्यों लिखा है? मुझे पता होना चाहिए कि ये गलत लिखा है मैंने यहाँ पे. दैट इज इनवैलिड वेरिएबल नेम, और ऊपर वाले सारे करेक्ट है. गेटिंग? अब ऑल आर करेक्ट वेरिएबल नेम. जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा, एक लिखा अमोल. ओके, देन नीचे और एक लिखता हूँ मैं, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ यहाँ पे 1 + 3j. ओके, गेटिंग? यस और नो? Yes. यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ पे अभी डिक्लेयर की है. पहला लिया इंटीजर, दूसरा लिया फ्लोट नंबर, तीसरा लिया स्ट्रिंग, और फोर्थ वन लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i एक्चुअली. ओके, गेटिंग? एनी डाउट? ओके, अभी यहाँ पे मैंने बाकी सारे नेम क्या है? वैलिड है. उसके बाद अभी मैंने नीचे और एक लिखता हूँ. आप बताना, आपको मुझे बताना है वेदर दिस इज करेक्ट और नो. रॉन्ग, टेल मी. It is not correct. Not correct. The starting Why not correct? because it's starting with a digit, and according to the first rule, it can only Yes, start we with are an underscore started or with a- digits. As per our rule, we don't have started with digits. We have to start with only underscore or letters. Okay, clear? All of you clear? Again, Yes, sir. Yes, sir. again one rule you have to remember. Variable name don't have any space. Means what? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा var space 1. Whether it is correct? No. No, sir, it No. is not correct. Var space 1 is not correct because don't have variable name don't have any space. It gives you error. All of you clear with this? Yes. एग्जाम में आपको पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? You have to write down what is variable. Variable are an example of identifiers. As identifier are the name suggest that the name given to identify the something. Identifier means what? जैसे कि मुझे integer यहाँ पे 3 means what? 3 identify करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? underscore var1. ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा what is variables and identifier in Python programming. So variables are examples of identifier. Getting? Variables are examples of what? Identifiers. And identifier name suggest what? It is name given to identify something. जैसे कि मुझे 3 identify करने के लिए मैंने यहाँ पे नेम दिया है var1 underscore var1. 5.5 स्टोर करने के लिए मैंने नेम दिया var2. अमोल के लिए मैंने दिया var1, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैंने दिया है 1 + 3i. Getting? All of you getting with this thing? Any doubt regarding this? और उसके बाद आपको एग्जांपल लिखना है. जैसे कि मैंने लिखा var$, it is invalid variable name, and var1 is a valid variable name. So all of you can write down the answer for this question. Yes, sir. Can you write the answer for this question? Yes, sir. Yes, I sir. will provide PDF also regarding how to write that question, regarding that specific topic also. Point wise है उसमें आंसर दिया. जो रीमा थरेजा का बुक मैंने बोला था आपको, उसमें सारी चीजें पॉइंट वाइज ही दी. मतलब 3.6 बिट जो दिया है वहां पे बुक में, डायरेक्टली दे हैव मेंशन वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स. यू हैव टू टेक द डेफिनेशन फ्रॉम दैट, take the rule from that, and write down one example for invalid variable identifier or valid identifier. Okay, so any doubt regarding this? No, sir. So आपको सबको पता चला कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है अभी?
sir. हाँ Yes. अभी हम आते हैं वेरिएबल, तो सबको समझ में आया। अभी हम आते हैं हमारे डेटा टाइप के आगे। मतलब डेटा टाइप क्या होते हैं, अभी देखो यहाँ पे मैंने किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर where 1 is equal to 3. So what is the meaning of this? Tell me. That you are assigning an integer to the variable. Yes, we are assigning an integer to the variable. Now tell me whether this is valid in your C programming or C++. No, it isn't, because in C++ you have to INT. mention int Yes, before the you have to variable. mention like this in C or C++. int a comma b comma c. You have to mention variables like this and float space b comma e. Likewise, उसके बाद char. Likewise, you have to mention. So this is the advantage of Python. You have to no need to mention the data type of वेरिएबल डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जैसे आपने वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन किया, उसका वो डेटा टाइप हो गया। मतलब अभी देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर var1 का डेटा टाइप क्या हो गया, बताओ मुझे अभी। इंटीजर। उसके बाद var2 is equal to 5.5. What is the data type now? Double of float. Float. var1 is equal to amol. What is the data type? String. String. Yes. var1 is equal to 1 plus 3i. What is data type? 1 plus 3i. Complex number. What is that? Complex number. Complex number data type is not available in your C or C++. है क्या आपके C और C++ में complex number? नहीं है sir. नहीं है। तो complex number का फॉर्मेट होता है a plus bi के फॉर्मेट में आपको लिखना है a plus bi. A means first number and b means second number and I is for complex number integration. Okay, all of you getting with this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. तो अभी यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको सेपरेटली डेटा टाइप का वेरिएबल का डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अंडरस्कोर var1 is equal to 3 लिखा। What is the meaning of this? var1 is the data type, var1 is the variable having data type integer and having value 3. Getting? Yes, sir. Tell me about var2 now. जो अभी मैंने स्टेटमेंट यूज किया था, वही सेम स्टेटमेंट मुझे var2 के लिए बताओ। Tell me. Anybody? var2 is a float. var2 is a variable having data type float and having value 5.5. yes. Similarly, third one, var1 is a data type, var1 is a variable having data type string and having value mode. आपको याद रखना है, डेटा टाइप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट यूज करना क्या करना है आपको, यूज वो रूल यूज करना है। वो रूल के हिसाब से आपको नेम लिखना है। वो रूल के हिसाब से आपने कुछ भी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है, ऐसे लिखना है, अमोल नहीं, var अंडरस्कोर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इट इज वैलिड वेरिएबल नेम। यस और नो? Yes sir, it is. Okay. Underscore is और अभी valid. कैसे रोल नंबर लिखना है। अभी रोल नंबर कैसे होता है, ऐसे लिखना है मुझे, रोल अंडरस्कोर नंबर। तो जहां पे मुझे कुछ स्पेस देना है तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। गेटिंग? क्योंकि स्पेस इज नॉट अवेलेबल इन नॉट वैलिड इन योर वेरिएबल नेम। ओके, स्पेस इज नॉट अलाउड। गेटिंग? एम्प्लॉय आईडी लिखना। अभी emp id, अभी emp id ऐसे लिखने की जरूरत क्या लिखूंगा मैं, emp underscore ID. Okay, yes. So all of you clear with the variable name? Yes sir. कैसे डेटा स्टोर करना है समझ में आया सबको अभी? हाँ sir. ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, 4 वेरिएबल तो यहाँ पे लिखे, उसके 4 वैल्यूज भी स्टोर किए। अभी मुझे क्या करना है, सिंपल कुछ तो ऑपरेशन करना है उसके ऊपर। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने लिखा प्रिंट। ऑपरेशन के पहले हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट अंडरस्कोर var1 कॉमा var2 कॉमा var1 Capital var. var1। ओके, 1 One sir. ओके, One. ओके, यस गॉट। execute. Okay, invalid syntax is there, 1 plus 3j. Okay, actually we have to use String.
Okay, getting? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. All of you getting? कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक्चुअली आई बोला था मैंने, आई नहीं वहां पे 1 + 3j लिखना है ओके ओके गेटिंग? ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. ओके अभी क्या करना है मुझे, ये तो मैंने सिंपली डिस्प्ले किया, मतलब क्या डिस्प्ले किया मैंने, व्हाट आई हैव डन, मैंने जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया उसको मैंने क्या किया, सिंपली डिस्प्ले किया। गेटिंग? ऑल ऑफ यू गेटिंग द आउटपुट? हाउ विल गेट द आउटपुट? ओके अभी क्या करेंगे हम, ऑपरेशंस करेंगे कुछ उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अभी c is equal to underscore var1 plus capital var2 and then print, you can write down this for your reference. 8.5. Okay, getting? All of you getting the answer? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible ना? Screen is visible ना? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. अभी हम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर करके देखेंगे उसको। अभी एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं मैं, PAR2 is equal to 3 plus 5j and then var3 is equal to var1 plus var2, उसके बाद प्रिंट इन ब्रैकेट var3। Getting output? All of you getting the output? Yes, 4 sir. plus 8j. Yes, sir. 1 plus 3 4, 3 plus 5 8 यानी आगे क्या आया 8j। सो ये एक्स्ट्रा फीचर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कहाँ पे नहीं था बताओ मुझे, C और C++ में है क्या ऐसे डायरेक्टली? नो, यू हैव टू मैनेज योर दैट, मतलब आपको करना कर सकते हैं बट उसमें आपको कुछ मतलब प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके आपको वो करना पड़ेगा। गेटिंग? 1 plus 3j करना है आपको। ओके सो दिस इज द ऑपरेशन दैट वी हैव परफॉर्म। अभी और एक वहां पे है, अभी जैसे कि मैंने सिंपली लिखा, और एक चीज आपको पता चली कि व्हाइल वी आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ वेरिएबल, व्हाट वी आर नॉट यूजिंग हियर, टेल मी एनीबॉडी, क्या यूज नहीं किया हमने? Amol. अरे वैसे नहीं, अमोल यूज नहीं किया, पता है मुझे। नो, सेमीकोलन तो पहले। वन थिंग, अनदर थिंग इज देयर दैट वी हैव नॉट यूज्ड, Double quotes. डबल कोट्स, वो भी नहीं है। Sir, और एक greater than equal to signs? नो नो नो, वैसे नहीं, वो तो बाद में देखेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको, मैंने जब वेरिएबल का आंसर यहाँ पे डिस्प्ले किया, आउटपुट डिस्प्ले किया, जैसे प्रिंट अंडरस्कोर var1 कॉमा var2 कॉमा var1, ये डायरेक्टली प्रिंटफ में सी में लिखा तो चलता है क्या? Format strings. यस, फॉर्मेट स्पेसिफायर यू हैव टू यूज। व्हाट यू हैव टू यूज? फॉर्मेट स्पेसिफायर, मतलब आपको लिखना प्रिंट ए करना है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रिंटफ इन ब्रैकेट डबल कोट %d कॉमा a एम्परसेंड a। गेटिंग? ए लिखना पड़ता है, और स्कैनफ में भी आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर देने पड़ते हैं इनपुट देते वक्त, बट देयर इज नो नीड टू राइट डाउन व्हाट, फॉर्मेट स्पेसिफायर। गेटिंग? आया समझ में? %d %f ये यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन मेंशन द वेरिएबल नेम एंड यू विल गेट द आउटपुट फॉर दैट वेरिएबल। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर विद दिस? Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. सो कैसे प्रिंट करना है समझ में आया सबको? समझा। ओके ठीक है। सो दिस अभी आगे जैसे जाएंगे तब अभी डेटा टाइप्स क्या क्या देखे हमने, बताओ मुझे। व्हाट आर डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट वी हैव? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दीज आर द 4 बेसिक डेटा टाइप्स दैट यू हैव टू राइट इन आंसर। अभी एग्जाम में पूछेंगे आपको व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन डेटा टाइप्स व्हिच आर अवेलेबल इन पाइथन। तो आपको एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखा जो अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा, ऐसा सिंपल प्रोग्राम लिखा तो भी चलेगा आपको। इट इज नॉट मैंडेटरी राइट डाउन द कोड दैट यू वाज गिवन इन योर बुक इटसेल्फ। आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हो, सिर्फ वहां पे डेफिनेशन बार होनी चाहिए। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, टेल मी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेटा टाइप, टेल मी। The variable that hold the values of different types are called as, hello, Data types. data types. The variables that can hold the values of different types, which is called as data types. Different types of value means what? It can be integer, it can be float, it can be string, it can be complex number.
सो दो क्वेश्चन समझ में आए सबको आज के? कौन से देखे हमने? तीन हाँ, क्वेश्चन कौन से देखे? Yes, sir. कौन कौन से क्वेश्चन देखे हमने विद पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, features of Python, which is one of the important question in your INSEM examination, theory INSEM examination. Second one is variables and identifier. That is one of the second important question. Third one is data type. तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप अवेलेबल इन पाइथन। तो यही पाइथन का एडवांटेज है। देखो यहाँ पे कितना सिंप्लीफाइड हो गया प्रोग्राम। यही प्रोग्राम हमें सी में करना रहता तो हमें पहले 2 लाइन वहां पे इंक्लूड करने रहते। कौन से 2 लाइन? विच लाइन्स? दोज लाइन्स हैश इंक्लूड conio.h and stdio.h। अगेन void main फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग द सी प्रोग्राम। यस और नो? Yes, sir. Okay? Yes, sir. और एक एडवांटेज है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रिंट var1 डायरेक्टली यहाँ पे लिखा तो भी रन होता है, इट गिव्स यू आउटपुट। बट वहां पे क्या करना पड़ता है आपको? फॉर्मेट स्पेसिफायर इंक्लूड करने पड़ेंगे। आपने डायरेक्टली प्रिंटफ के अंदर var1 प्लस var2 लिखा, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अभी यहाँ पे देखो, चेक करते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। गेटिंग आउटपुट? यस और नो? यस और नो? सो डायरेक्टली मतलब इसका एक यहाँ इस स्टेटमेंट का एडवांटेज क्या हो गया? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस स्टेटमेंट? यहाँ पे एक लाइन कम हो गया हमारा। कौन सा लाइन? var3 का कम हो गया। यस, var3 इज इक्वल। उसकी वजह से क्या होगी? मेमोरी वेस्टेज, हाँ, डाटा कम हो गया। स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल 3 यूज नहीं करना पड़ा वहां पे। और लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड आल्सो मिनिमाइज। जहां पे 2 लाइन यूज कर, 1 लाइन यूज करना, 2 लाइन यूज कर रहे थे हम, वहां पे 1 लाइन में हमारा आंसर हो गया। गेटिंग? यस और नो? अभी जैसे 1 बाय 1 देखेंगे हमें आगे कंसेप्ट, तो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए हम देखेंगे। वी विल गेट अनदर थिंग दैट वी विल इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे जैसे एक्स्ट्रा पार्ट पढ़ेंगे। अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, इसलिए वजह से अभी बेसिकली हमने अभी वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखा, उसके बाद डेटा टाइप्स देखे, फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग देखे। ओके, सो अभी तक कुछ डाउट है किसी को? Any doubt regarding this? Any doubt? Sir, Tell me. sir, what to write in features of Python? Features of Python you have to write. It is simple language. It is object-oriented language. It is extensible language. It is embedded language. It is portable. It is open source. It is free. It is high-level language. Getting? Yes, sir. I will provide you material regarding that. In that material, each and every feature is explained in 1 or 2 lines. Getting? Yes, or sir. no? So you have to write, if your question is for 5 marks, you have to write 5 features. If question is for 6 marks के लिए question होता नहीं generally, but you have to prepare any 5 features that you can write in your exam perfectly. तो उसमें से simple आप करो उसमें से. It is simple, it is easy to learn, it is versatile, it is free and open source, it is object oriented, it is high level language. बस हो गया. Getting? बाकी चीजें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये थियोरेटिकल, कोई पूछेगा नहीं आपको। ओके, तो आपको बेसिक थिंग आपको प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए, बाकी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। थियोरेटिकल पार्ट इज यू कैन राइट, यू कैन, मैंने आपको मटेरियल दिया, यू कैन लर्न इट एंड यू कैन राइट इट द आंसर। बट बेसिकली क्या होता है, आपको प्रोग्राम लिखने आने चाहिए। तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको यू हैव टू राइट द प्रोग्राम व्हेन यू आर क्लियर द कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बेसिक थिंग बताई कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए कुछ रूल है। कभी कभी कैसे होता है, आप वो रूल नहीं यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा ना कि आपको ये रूल पता है, तो आप उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम देंगे। अभी आपको पता है कि स्पेशल सिंबल यूज ही नहीं करने। और मुझे वन थिंग यू हैव टू टेल मी, व्हाई वी हैव टू डोंट यूज द स्पेशल सिंबल व्हाइल राइटिंग द वेरिएबल नेम? टेल मी एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? डाटा ज्यादा चलाते हो लोग। डाटा इज ओके। अनदर एनी अदर आंसर? प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाए। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स, बट 1 और 2 सिंबल से इतना थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगा। एनीबॉडी अदर? आर्किटेक्चर वैसे डिजाइन है। हाँ, Computer doesn't understand them. नो, ऑल सिंबल्स हैविंग ASCII वैल्यू। सिंपलीफाई करने के लिए। सिंपलीफाई नो। मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस ऑपरेटर? स्पेशल प्लस भी एक स्पेशल सिंबल है ना उसमें। हाँ, टू ऐड। अभी उसका वर्क क्या है, टू ऐड 2 नंबर्स ना। तो जो हमने वेरिएबल के साथ लिया, तो कंपाइलर गेट कंफ्यूज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर ना।
Getting or not? Yes or no? So that's why we have to don't use any. अभी हैश भी क्यों नहीं यूज करना? हैश कहाँ पे यूज करते हैं हम? Comments. कमेंट्स में यूज करते हैं। एट द रेट भी यूज करते हैं। एट द रेट कहाँ पे यूज करते हैं? वो जो प्राइवेट फंक्शन कंसेप्ट देखेंगे हम फंक्शन चैप्टर में, वहां पे आपने एट द रेट यूज करना पड़ता है। तो ये सारे चीजें हम कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे सेमीकोलन, कॉमा सेपरेशन के लिए यूज करते, तो वो नेम में यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम में। गेटिंग क्यों यूज करना है? गेटिंग समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कंपाइलर गेट्स कंफ्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक ऑपरेटर, कि वहां पे वेरिएबल नेम के साथ यूज करना, उसको वहां पे कंफ्यूज होगा कि वेदर वी हैव टू टेक अ वेरिएबल नेम और वी हैव टू कंसीडर इट एज अ प्लस ऑपरेटर। यस और नो? Yes, yes, sir. गेटिंग? Get it. All of you clear with this Yes, thing? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So we'll stop here for today's lecture. Okay? अटेंडेंस अभी लिया मेरे पास है ऑलरेडी, सर ने लिया था ना, मैंने नोट डाउन करके रखा था। जो अभी पहले लेक्चर में नहीं थे वो क्या दे कैन गिव अटेंडेंस। प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन नहीं था? दे कैन गिव मी द अटेंडेंस, आई विल मार्क द अटेंडेंस। Hello, sir. हाँ, टेल मी। Sir, I was present in previous lecture, but sir ने मेरा attendance लिया नहीं था, लेकिन ओके ओके, आई विल मतलब my problem था। रोल नंबर? Yes, sir. 53. 53, okay. I will tell sir to mark your attendance, okay? Oh, sir. Okay, My so problem I था- will stop here. Thank you very much. Okay? Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you, The sir. 61 also Thank you, present. sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.